Hello students, today's topic for discussion is addressing modes. We all know that a computer instruction has opcode and operands on which we have to perform the operation that is mentioned in the opcode. Now the operands can be in the registers or it can be in memory. So we have to fetch the operands from these two locations, and where the operand is stored is specified by the addressing modes. So addressing mode of an instruction refers to a rule by which the effective address of an operand for that instruction is calculated. Clear? So sometimes the instruction itself contains the operand, sometimes the instruction contains directly the address of the memory, sometimes the instruction contains the address where the address of the operand is stored. So there are different types of techniques in which we can mention the address of the operand in the instruction, and these different types of techniques are called addressing. So एड्रेसिंग मोड क्या हो गया, हमारा ऑपरेंड मेमोरी में या कंप्यूटर रजिस्टर में कहाँ पर स्टोर्ड है, उस एड्रेस को हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड. So the rule by which the effective address of an operand for that instruction is calculated. Now what is the effective address? Effective address is defined to be the memory address obtained from the computation dictated by the given addressing mode. हमारे पास different types के addressing modes होते हैं और उन different types के addressing modes में different techniques होती हैं to calculate the address of the operand. Clear? So effective address क्या होता है? The address which is used to calculate the actual address of the operand. Clear? Now we have different types of addressing modes. Different types of addressing modes are implied addressing mode, immediate addressing mode, register mode, register indirect mode, auto increment and auto decrement mode, direct addressing mode, indirect addressing mode, relative address mode, index addressing mode, and base register addressing modes. First one is implied addressing mode. In this type of addressing mode, the operands are specified implicitly in the definition of the instruction. Clear? So जो operands होते हैं वो हमारे instruction में ही included होते हैं. Like the instruction CMA. CMA is complement accumulator. Clear? C for complement, CM for complement, and A for accumulator. Accumulator is a computer register which is used to store temporary data or intermediate results. Clear? So the instruction CMA, that is complement accumulator. यहाँ पर complement is the operation and accumulator is the operand. Like accumulator में जो भी हमारी वैल्यू होगी उसे हमने कॉम्प्लीमेंट करना है. So this is an example of implied instruction mode in which the operand is specified in the definition of the instruction itself. Next is the immediate mode. In this mode, operand is specified in the instruction itself. The operand field contains the actual operand to be used in conjunction with the operation specified in the instruction. Like for example, add 5. Here we have to add value number 5 to the accumulator register, because accumulator register is the by default register. In the statements where we have not mentioned the destination address where the result of the instruction is to be stored, accumulator is assumed that the result of that instruction is stored in the accumulator.
सो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू हमारी स्टोर्ड है उसमें मुझे 5 ऐड करना है और उसी अपडेटेड वैल्यू को एक्यूमुलेटर में ही मुझे स्टोर करना है। यहाँ पर here add is the opcode and 5 is the operand value. So the statements in which the operand is specified in the instruction only, that mode is called immediate mode. Next is register mode. When the address field of the instruction specifies a processor register, the instruction is in register mode. Clear? So इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड होगा एंड ऑपरेंड का एड्रेस होगा और एड्रेस किस चीज का होगा, कंप्यूटर रजिस्टर का. So when the address field of the instruction specifies a processor register contains the address of a computer register, that mode is called register addressing mode. In this mode, the operands are in registers that reside in the CPU. That we have already done, that computer registers resides in the CPU and they are used because the speed of the main memory is not compatible with the speed of the CPU. So we use computer registers to store the current data which is required for execution. So when the operand is stored in some computer register and the instruction address specifies the address of that register, that is called register addressing mode. For example, here the statement is move AX CX. It means move the contents of CX register to AX register. So directly address of the register is given. CX register के contents को मुझे AX register में move करना है. So instruction contains the address of the CX, direct address of the CX register and the AX register. Next is register indirect mode. पहले अभी हमने किया register direct mode, जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस था, that address is the direct address of the register in which the data is stored. Now here the instruction specifies a register in the CPU whose contents give the address of the operand in memory. Here in the diagram we can see instruction में जो एड्रेस होगा वो उस रजिस्टर का एड्रेस होगा जिस रजिस्टर में मेमोरी में जहां पर डेटा स्टोर्ड है उस लोकेशन का एड्रेस है. एक्चुअल डेटा हमारा कहाँ स्टोर्ड है, मेमोरी में. इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ पर स्टोर्ड है, एक कंप्यूटर रजिस्टर में स्टोर है और इस कंप्यूटर रजिस्टर का एड्रेस कहाँ पर होगा, हमारा इंस्ट्रक्शन के एड्रेस वाले पार्ट में होगा. So in the register indirect mode, the instruction specifies a register in the CPU whose contents give the address of the operand in memory. Next addressing mode is register indirect. इसी को ही हम आगे continue कर रहे हैं. For example, move AX BX. This is the statement. Move the contents of memory location addressed by the register BX to the register AX. Here BX is the address of a register which is mentioned in the instruction. Instruction contains the address of BX. BX contains address of memory location of data. तो यहाँ से हम उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फाइंड आउट, यहाँ पर हम रजिस्टर का एड्रेस फाइंड आउट करेंगे, उस रजिस्टर से हम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फाइंड आउट करेंगे एंड वहां मेमोरी लोकेशन से हम डेटा को फेच करेंगे. एडवांटेज क्या हो जाता है इस रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का, द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूजेस फ्यूअर बिट्स टू सिलेक्ट अ रजिस्टर दैट देन वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली. तो अगर हम मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली डालते हैं इंस्ट्रक्शंस में, वो एड्रेस हमारा लेंथी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस मेमोरी एड्रेस को हम एक रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं और उस रजिस्टर के एड्रेस को हम इंस्ट्रक्शन में ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट इज ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड. दीज आर द वेरी सिंपल मोड्स. द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड आफ्टर इट्स वैल्यू इज यूज्ड टू एक्सेस द मेमोरी. जैसे अभी हमने किया रजिस्टर इन डायरेक्ट मोड में कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
रजिस्टर से वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी एड्रेस की और मेमोरी एड्रेस से हम डाटा फेच कर रहे हैं। तो जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है हम क्या करते हैं, उस रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं या डिक्रीमेंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एड्रेसिंग मोड। नाउ डायरेक्ट एड्रेस मोड, यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस मोड है द इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेंड रिजाइड्स इन मेमोरी। जो हमारा डायरेक्ट रजिस्टर मोड था, ऐसे ही यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एड्रेस मोड है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस होगा वो डायरेक्टली कहाँ का एड्रेस होगा, मेमोरी का एड्रेस होगा जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर्ड है एंड इट्स एड्रेस इज गिवन बाय द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। क्लियर? सो द डिफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस हमारा अलग से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ये डायरेक्ट एड्रेस है, तो इंस्ट्रक्शन पार्ट में हमारे पास डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल लोड R1, 100, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस 100 टू रजिस्टर R1। तो यहाँ पर मेमोरी एड्रेस 100 इज गिवन, 100th लोकेशन पे जो भी मेरा डेटा है उसे मुझे रजिस्टर R1 में लोड करना है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। जैसे अभी हमने रजिस्टर का किया डायरेक्ट रजिस्टर मोड, इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एड्रेस मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, एंड these both modes are in reference to the memory, main memory. In this mode, the address field of the instruction gives the address where the effective address is stored in memory. Effective address means जो हमारा एक्चुअल एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा डेटा का। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस फील्ड है वहां पर एड्रेस होगा। ठीक है, जो एड्रेस होगा उस लोकेशन पे एक्चुअल डेटा का एड्रेस आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोड R1 एट द रेट 100। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड एट मेमोरी एड्रेस 100। अभी प्रीवियस वाले में हमने क्या किया था कि मेमोरी लोकेशन 100 पे एक्चुअल डेटा स्टोर्ड था। अब यहाँ पर क्या है, मेमोरी एड्रेस 100 पे एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस पे हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर्ड होगा। तो ये इनडायरेक्ट मोड हो गया, आपके इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस है वो उस एड्रेस का एड्रेस है जहां पर हमारा डेटा स्टोर्ड है। नेक्स्ट इज रिलेटिव एड्रेस मोड। In this mode, the content of the program counter is added to the address part of the instruction in order to obtain the effective address. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर is a register which contains the address of the next instruction to be executed by the CPU. ये हमने कंप्यूटर रजिस्टर्स वाली वीडियो में किया था। The program counter contains the address of the next instruction that is to be executed by the CPU. ठीक है, तो रिलेटिव एड्रेस मोड में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन से एड्रेस पार्ट को उठाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में हमारा ऑपकोड होता है और एड्रेस पार्ट होता है। तो इंस्ट्रक्शन से जो 12 बिट्स का हमें एड्रेस मिलेगा वो हमने उठाया एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, और प्रोग्राम काउंटर में क्या है, जो भी कंटेंट स्टोर है उन दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो एड्रेस होगा हमारे डेटा का जहां पर मेरा डेटा स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम काउंटर में जो स्टोर्ड है वो नंबर है 825, मतलब 825 लोकेशन वाली इंस्ट्रक्शन को मुझे नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। Now, address part of the instruction contains number 24. Clear? So, program counter में हमारे पास क्या कंटेंट है, 825 स्टोर्ड है। इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में मेरे पास कौन सा नंबर है, 24 नंबर है। Now, the instruction at location 825 is read from memory during the fetch phase and PC is incremented by 1. तो क्या हुआ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मुझे अब नेक्स्ट 825 एग्जीक्यूट करनी थी, मैंने उसे फेच कर लिया और क्या किया, उसे इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1 सो दैट इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ द कंटेंट ऑफ द
प्रोग्राम काउंटर बिकम्स 826। तो 826 में हम क्या ऐड करेंगे, नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो 826 प्लस 24 850। नाउ 850 इज द एड्रेस ऑफ द डेटा दैट इज where the data is actually stored. Now the next addressing mode is indexed addressing mode. Previous वाले में हमने क्या किया था, एड्रेस पार्ट में कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर हमने ऐड किया था टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। इस मोड में हम क्या करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को ऐड करेंगे इन द इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट में हम एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे और जो मेरा रिजल्ट आएगा दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द डेटा। हियर द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, लोड R1, 100 R2। यहाँ पर लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस विच इज द सम ऑफ 100 इज द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2। कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 इज द इंडेक्स रजिस्टर। सो 100 प्लस द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2, इन दोनों को ऐड करके जो मेरा एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पे जो डेटा स्टोर्ड है उसे मुझे कहां पर लोड करना है, रजिस्टर R1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन में बेस रजिस्टर को ऐड करते हैं, बेस रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करते हैं। वेरी मच सिमिलर आपका रिलेटिव एड्रेस मोड में हम प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को ऐड कर रहे हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट को ऐड कर रहे हैं और बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम बेस रजिस्टर के कंटेंट्स को ऐड कर रहे हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, द इंडेक्स रजिस्टर इज एज्यूम्ड टू होल्ड एन इंडेक्स नंबर दैट इज रिलेटिव टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंडेक्स रजिस्टर बेसिकली यूज्ड फॉर एरेज। अगर जैसे हम एरे का एग्जांपल लें, एरे में हमारे पास फर्स्ट एरे एलिमेंट का एड्रेस गिवन होता है, दैट इज बेस एड्रेस हमें गिवन होता है और बाकी के जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इंडेक्स रजिस्टर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने बोला A4, ठीक है, तो वो क्या है, 4 इज द इंडेक्स। तो बेस रजिस्टर में मैं उसको ऐड करती हूँ और मुझे A4 की लोकेशन मिल जाती है। सो इंडेक्स रजिस्टर इज एज्यूम्ड टू होल्ड एन इंडेक्स नंबर दैट इज रिलेटिव टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड बेस रजिस्टर में क्या होगा, इट इज एज्यूम्ड टू होल्ड अ बेस एड्रेस। तो बेस रजिस्टर में हमारा बेस एड्रेस होता है, इंडेक्स रजिस्टर में हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है। बेस एड्रेस जैसे एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो होगा वो हमारा बेस एड्रेस होगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है। Now these are the different types of addressing mode. First one is implied addressing mode, immediate addressing mode. इन दोनों एड्रेसिंग मोड्स में हमारा जो डेटा होता है वो डायरेक्टली आपका इंस्ट्रक्शन में ही होता है। इमीडिएट में हमारा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में होता है और इम्प्लाइड में हमारा एक्यूमुलेटर, हम उसे एज्यूम करके चलते हैं। देन डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन में ही रजिस्टर का एड्रेस होगा और उस रजिस्टर में आपका डेटा होता है। Next is indirect address mode. Let me come to the slide. Yes, implied addressing mode में default mode होता है accumulator के लिए। Immediate addressing mode में हमारा data ही actual में instruction में included होता है। Register mode contains the address of the register where the data is stored. Register indirect mode contains the address of the register which contains the address of another register where the actual data is stored. So अगर डेटा आपका एक रजिस्टर में स्टोर है, उस रजिस्टर का एड्रेस हमारे दूसरे रजिस्टर में होगा और उस दूसरे रजिस्टर का एड्रेस हमारा इंस्ट्रक्शन में होगा। ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड,
नाउ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारे पास डायरेक्टली एक मेमोरी एड्रेस होगा इंस्ट्रक्शन में और उस मेमोरी एड्रेस पे ही हमारा डेटा स्टोर होगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारे पास इंस्ट्रक्शन में एक एड्रेस होगा विच विल कंटेन द एड्रेस of a location where the address of the data is stored. Like register indirect mode, indirect addressing mode. It is register indirect mode refers to the registers and indirect addressing mode is referring to a memory location. Relative address mode, the address part of the instruction is added to the index register, base register and program count. That's all for addressing mode. Thank you.